So I'm Dr. Anil Gupta. I'm an author. I've written 3 books. One of them is bestseller in multiple countries and on Amazon. Title is Mind the Millionaire in You. The other one is The Time Factory. And third one is Man on Mission. So I also do business. And I'm founder and chairman of Microtech Group, Okaya Group, and Okaya EV is my e-mobility is my new business venture, which I started at the age of 60, along with my son, who's leading it. I have been associated with the power statement, which I made in course with Sanjeev ji also. So we serve 13 crore customers in 42 countries in 5 continents and enjoy a market share of more than 50% in 2 businesses out of many businesses. And we are into top 3-4 in most businesses we do, other than the startup businesses. We also do software export to US with the name Okaya Infocom. And we do real estate business and develop real estate more than for 5,000-7,000 crores, residential, commercial, and I would say IT spaces in Noida, Chandigarh, Gurgaon, with the name Okaya Real Estate Division and Microtech Infrastructure. So all these businesses I'm able to handle with ease and with comfort and without any panic and pressure. Is all because of the courses I have been through. Sanjeev Jainji's course is one of them I have been through, which made a difference. Every day morning, Sanjeev ji, I must confess that you had given a form that I fill every day morning. How was my last day? And I recall I used to fill and I used to stop, and then you said, "Jab tak aap karoge nahi to aapko fayda pata lagega nahi." And every Sunday I fill the Sunday wala form, how the week was, and I create my next week. So these 2 things have come to my life completely under Sanjeev ji's course. उनके अंदर उसमें पर्पस और मिशन बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने अपने हिसाब से चेंज की. You can see this card. This is on many tables of my company. This was created in Sanjeev Jainji's course, and now it is part of the organization, which clearly states purpose, mission, vision, and BHAG, as well as there is something called AKM here, and there is brand promise. AKM is a group of employees, core employees, who have made a group to lead, become future leaders. Then the 1-page plan template is there on every table, and this is a kind of thing which I carried from the course. Daily planning and weekly planning, each employee of the company has to do, and we do. And we share on a WhatsApp group every weekly the next week plan, and we call it the Saturday Weekly Updation Group, SWAR. So on this SWAR group, every key employee posts where Anshul and me are there, and we also post as a leader our plan, and on another group we post how our last week was. तो ये हमारी प्रैक्टिसेस संजीव जैन जी के कोर्स से आई. डेलीगेशन शीट और साइक्लिक वर्क की शीट्स और एक ट्रिनिटी ट्रैकर आपको पढ़ाएंगे. वो 3 चीजों की शीट अलग रहते थे, अब वो ट्रिनिटी ट्रैकर से एक साथ चलती है. 1-पेज प्लान आने से प्रैक्टिकली कंपनी की अलाइनमेंट और लोगों की अलाइनमेंट टुवर्ड्स द गोल बहुत अच्छे से हो जाती है. अब की बार 400 पार ये उस मोदी जी का भी 1-पेज प्लान चल रहा है अभी 100 दिन के लिए, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंसाइट उससे मिली. सबसे बड़ी इंसाइट आई स्टोरी टेलिंग की. इनका एक स्टोरी ग्रुप है, उसका मैं भी रेगुलर रीडर हूँ, उससे स्टोरीज पढ़ते रहता हूँ. उन्हीं से स्टोरी उठा के मैं भी अपनी हर मीटिंग में एक स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि वीकली मीटिंग का और मंथली मीटिंग का एक रिदम ये आपको बताएंगे. एंड द वेरी गुड थिंग ही टोल्ड which stuck to my mind was fixing meetings take more time than actually doing the meeting. तो meetings rhythmic होनी चाहिए, और मीटिंग्स का एक फॉर्मेट भी इन्होंने दिया कि मीटिंग कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, फिर कैसे मिडल होना चाहिए, कैसे एंड होनी चाहिए, कैसे उनकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए मीटिंग की. तो कुछ रेजिस्टेंस के बाद वो सब अब पार्ट ऑफ कल्चर बन गया.
जरूर कभी कभी चली जाती है, कभी शेड्यूल चले जाता है, कभी वीकली मीटिंग चली जाती है, और लाइफ में फिर वर्केबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है, फिर हमें याद आता है, फिर चालू कर देते हैं। तो अब ये सेकंड कल्चर बन गई है कुछ चीजों की, पर कुछ चीजें अभी स्मूथ होती जा रही हैं, बट वी अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ इट। उसके बाद जिस ईज से टेक्नोलॉजी वाले काम बिना ज्यादा फार्मूला वगैरह सीखे काम हो जाते हैं यहाँ पे इनकी सॉफ्टवेयर से, वो अमेजिंग है। जितनी सपोर्ट मिलती है इनकी टीम से वो तो आपको एक्सपीरियंस करने से ही पता लगेगा कि आप टिकट खोल दो और फिर अपने आप फोन आते हैं और काम हो जाता है। इसके अलावा मैं एक चीज जरा शेयर करना चाहूंगा, आपके लिए भी सरप्राइज होगा संजीव जी, कि हमने आपका एक सेशन हुआ था, हैमर एंड नेल वाला कुछ था, मेरे को नाम उसका पूरा याद नहीं आ रहा है। विजुअल हैमर, विजुअल हैमर, विजुअल हैमर, विजुअल हैमर। तो एक नेल बनी थी और एक हैमर से वो दिमाग में नेल ठोकी जा रही थी। तो उस सेशन में एक नेल आपने हमारे दिमाग में ठोक दी, और हमें अपने लोगों के अंदर, मैंने उस सेशन की पीपीटीज को दोबारा देखा, फिर आपने एक बुक रिकमेंड की थी, उस लेडी ने लिखी थी राइस और समथिंग नाम था, वो बुक खरीदी, लॉरा रीस। तो मैंने फिर वो बुक खरीदी। उस बुक में कुछ ज्यादा था नहीं, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स ही थे, बट दैट स्टेड विद मी। एंड व्हेन वी वर लॉन्चिंग आवर इलेक्ट्रिक बाइक्स फेराटो, तो वी वर टू क्रिएट द लोगो। एजेंसी ने बहुत सारे लोगो दिखाए, बट दैट नॉलेज केम हैंडी। तो हमने वहाँ पे एक पैंथर को दिया एनिमल की तरह और नाम को क्रिएट किया। तो आई गेस वो संजीव जी आपकी एक गिफ्ट हमेशा याद रहेगी, जब भी हम फेराटो को देखेंगे तो आपका वो कोर्स का वो वाला सेशन याद आ जाएगा। आई थॉट बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। क्योंकि देखिए मैं देखते ही समझ गया था जब आपने लॉन्च किया था कि ये जो पराठो है ना, ये एनिमल जो है ये आपने वहीं से सेलेक्ट किया, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग। क्योंकि पहले ब्रांड जो आप यूज कर रहे थे ओकाया ईवी, तो दैट डिडंट मीन एनीथिंग टू पीपल, राइट? ओकाया इज नोन फॉर बैटरीज, बट उसका ईवी से क्या लेना देना। तो अब लेकिन जो आपने किया और नाम भी वो रखा फराटो, तो उसका मीनिंग भी वही है। और तो विजुअल हैमर और नेल दोनों तैयार है। मतलब उसने हमारी लाइफ के अंदर द वे वी थिंक अबाउट ब्रांड्स के ऊपर पूरा इम्पैक्ट डाला, अंशुल और मेरा, और अलाइनमेंट भी एक ही मिनट में हो गया। और वो ब्रांड भी बहुत वेल रिसीव्ड हुआ। जब हमने लॉन्च किया तो इंडिया की कोई टीवी चैनल नहीं है, व्हेन I say across, there is no TV channel which has not carried the news, and no online channel which does some work on news or in EV which has not carried the news. I have never had such a successful launch. तो I guess brand का काफी इम्पैक्ट रहा होगा उसमें। बहुत ही बढ़िया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और कल्चरली जो चेंजेस आए वो बहुत ज्यादा है। देखो हर कोर्स से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। मैंने बहुत सारे कोर्स किए, जितने भी कोर्स आप लोग में से भी बहुत सारे करके आए होंगे, बहुत सारे अभी करेंगे। कुछ कोर्सेज है उसमें से वेंटो है, मतलब लैंडमार्क है। लैंडमार्क एजुकेशन आपको जरूर करना चाहिए, लैंडमार्क एजुकेशन का एडवांस कोर्स भी करना चाहिए। एवरी टाइम मैंने लैंडमार्क एजुकेशन का एडवांस कोर्स किया और मैंने एक बिजनेस क्रिएट किया, ठीक है, ये भी मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद संजीव जैन जी का कोर्स करने के बाद टेक्नोलॉजी, मैं एक दिन संडे आया था इनके पास, ये ना पर्सनल टाइम भी दे देते हैं, आप फिक्स करके आओ। तो संडे आया, मैं और मेरा बेटा और हमारा एक मार्केटिंग का बंदा, और हमने इनसे 2 घंटे लिए और एआई के बारे में सीखा, जब एआई नई नई आ रही थी, और उसको आज हम यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी वैल्यू बियॉन्ड द कोर्स, आफ्टर द कोर्स मिलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है, इनकी सारी टेक्नोलॉजी और सारे टेम्पलेट फॉर्मेट फ्री हैं टेक कोर्स के साथ। बाद में भी हैंड होल्डिंग है, पहले भी हैंड होल्डिंग है, और कस्टमाइजेशन भी कर देते हैं बिना कुछ पैसा लिए, बता देते हैं चीजें और आप खुद कर सकते हैं। और कभी बहुत ऐसी अटक जाती जो सबके फायदे की होती तो ये खुद भी कर देते हैं। तो अमेजिंग टीम है, अमेजिंग पर्सन है, और आपका काम करना आसान कर देते हैं। पर ये कोर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी कोर्स नहीं समझना, मैं ये आपको वार्निंग दे दूं, टेक्नोलॉजी के साथ ये माइंड पे भी काम करता है, और माइंड के साथ कल्चरली भी। जैसे मैं तो कभी सोच के नहीं आया था कि मुझे मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी पता लगेगी इसमें। मैं समझ के नहीं आया था 1 पेज प्लान पता लगेगा। मैं ये भी नहीं समझ के आया था कि गोल, मिशन, पर्पस वगैरह मेरे रिकिंडल हो जाएंगे और दोबारा से मुझे इनको काम करना पड़ेगा, जो कि कहीं छूट गए थे। तो बहुत सारे ऐसे जनरल इंटरेस्ट के टॉपिक ये कवर करते हैं। कम्युनिकेशन पे भी अभी एक कवर करते हैं, ये अभी मार्केटिंग पे भी करते हैं।
तो ये आई वुड से एक 360 डिग्री कोर्स है जो टेक्नोलॉजी जिसका मेजर कंटेंट है 50% एंड अदर 50% इज प्रोबेबली डेवलपिंग यू एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो अब मेरे को सडनली नहीं समझ आ रहा कि ये और क्या क्या मैं शेयर कर सकता हूँ हाँ, और करते। मैं पूछ लेता हूँ रेलेवेंट चीजें। तो हाँ अनिल जी जी, आप। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं ना, उन्होंने राहुल जी का भी कोर्स किया हुआ है, मैंने भी किया हुआ है, आपने भी किया हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो आते हैं मेरे पास, तो उनको लगता है कि इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी होगी, तो उनको किस तरह से इसको लेना चाहिए, ठीक है ना? आप एक्सपीरियंस मैं रहा, बता, दोनों किया है। मैंने राहुल जी का कोर्स भी 3 बार किया हुआ है और संजीव जी का भी 3 बार किया है। दोनों बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स हैं। राहुल जी का कोर्स गंगोत्री की तरह है, वो फर्स्ट कोर्स होता है, लोग पहले उसमें एनरोल होते हैं, उससे ना कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं चीजों के। अब कॉन्सेप्ट के बाद वो कॉन्सेप्ट के बाद टेक्नोलॉजी में लग जाते हैं, उलझ जाते हैं, काम करते रहते हैं, ऑपरेशंस में रह जाते हैं। अब फिर उनका एएसपी करते हैं, सेल्स वाला करते हैं। अब ये ना सेल्स और एएसपी वगैरह में जो भी आपको सीखने को मिलता है वो लेवल यहाँ पे भी मिलता है। और वो सारी चीजें फिर आईटी में इन्होंने भी मतलब उन्हीं चीजों को एक और रिफाइंड तरीके से, हर एक शॉप में ना केक का थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, मैं ये कहूँगा। तो टेक्नोलॉजी के अंदर मैक्सिमम टूल जो हमने यूज किए हुए हैं वो संजीव जी आपके किए हुए हैं। और बहुत सारे फॉर्मेट्स हम उनके भी यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं। और हम उनका कोर्स भी रिव्यू करते हैं और आपका भी रिव्यू करते हैं, क्योंकि उनके कोर्स में एक अलग तरीके से अलग डायमेंशन मिलती है कि वेंडर से निगोशिएशन कैसे करें, इससे कैसे करें, उससे कैसे करें, टीम अलाइनमेंट मीटिंग कैसे करें, पिच कैसे बनाएं। और आपके यहाँ से एक दूसरी तरह का आयाम मिलता है कि बिजनेस को ग्रोथ कैसे करें, बिजनेस के अंदर इस एरिया में क्या करें, उस एरिया में क्या करें, टीम से बॉन्डिंग कैसे बढ़ाएं, और स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस को कैसे सेट करें कि वो लॉन्ग टाइम लाइफ में आ जाए। तो जैसे मैं कभी ये नहीं रखता था, वो उनके कॉन्सेप्ट से चालू की। डेलीगेशन मैंने उनके कॉन्सेप्ट से चालू की, और फॉर्मेट डेलीगेशन शीट का आपका लगाया। फिर उनकी शीटें कुछ कुछ लगा रखी थी, वो ट्रिनिटी में शिफ्ट कर दी कि उससे मेरी ईज ऑफ वर्किंग होगी। तो ना बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। मेरा ये कहना है कि आप आइदर और नहीं है, और बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। और आपको ये लगेगा कि जैसे आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है और केमिस्ट्री में और जा रहे हैं, तो हम सब बिजनेस के स्टूडेंट हैं और बिजनेस में आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों कोर्स बहुत जरूरी हैं। पर अगर आपने खाली राहुल जैन किया और संजीव जैन नहीं किया तो आप अधूरे हैं। और अगर खाली संजीव जैन किया राहुल जैन नहीं किया तो भी आप अधूरे हैं। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा पूछता है कि आप ना दोनों कोर्स क्यों कराते हो, क्योंकि 60% 70% कंटेंट में टेक्नोलॉजी का एरिया सिमिलर है, टैकल करने के तरीके अलग हैं। मैंने इनके यहाँ पे इंट्रानेट साइट बनाना सीखा, मुझे अभी एकदम याद आया, इंट्रानेट साइट बनाना सीखा। तो मैंने अपने 36 डीलर का इंट्रानेट साइट बना रखा है, एंड उनको कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ती और कोई पैसा भी नहीं लगा, खुद ही बन गया। अब वो वहां पे कुछ चीजें वहां पे नहीं होंगी जो यहाँ मिलेंगी, कुछ चीजें वहां पे भी होंगी जो यहाँ मिलेंगी, कुछ चीजें वहां पे होंगी जो यहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां पे वो कंप्लीट हो चुकी। और संजीव जी को पता है सबका समय दोबारा लगाने से कोई फायदा नहीं। इनके कोर्स में एक चीज मैंने जरूर देखी कि ये ना फटाफट फटाफट करके चीजों को कवर करते हैं, फिर प्रैक्टिस सेशन और जो बाकी लोगों के अपने इम्प्लीमेंटर के सेशन अलग से करते हैं, जिससे कि बिजनेस ओनर का टाइम खराब नहीं होता, और वो सेशन भी बहुत इंटेंस होते हैं और कोई पैसा भी नहीं लगता। तो हमारे इम्प्लीमेंटर्स के ईए की वर्कशॉप अलग चल रही थी, एमआईएस वालों की वर्कशॉप अलग चल रही थी, एचआर की अलग चल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों की अलग अलग वर्कशॉप्स अलग अलग दिन चल रही थी, और हमारी हर दिन चल रही थी। बट हमें कभी किसी भी वर्कशॉप का किसी भी स्टूडेंट को कोई पैसा नहीं देना पड़ा, अनलेस उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी अब बदल दी हो। पर मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं बदली। फिर इनकी एएमसी भी है कुछ की, इतने मल्टीपल ईयर्स का हैंड होल्डिंग, तो हमने वो 3 ईयर की हैंड होल्डिंग के साथ काम किया था। एल्यूमिनाई में फिर वो बहुत सारी वैल्यू मिलती है, तो एल्यूमिनाई में नए नए टूल, एडवांस टूल्स दिखाते रहते हैं, तो और वो इम्प्लीमेंट भी कराते रहते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारी वैल्यू मिलती है। तो मुझे लगता है कि आपको दोनों को खुद ही एक्सपीरियंस करना रहेगा, और बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये बिल्कुल ना सोचना कि एक कर लिया तो काम पूरा हो गया, दोनों ही करने बहुत जरूरी है, दोनों ही करने बहुत जरूरी ये भी है। बताइए, एटलीस्ट मेरे
बच्चों ने, मेरी डॉटर ने, मेरे सन इन लॉ ने, मैंने, हम 4 लोग हैं। हम 4 लोगों ने तो दोनों कोर्सेज को एक एक बार तो सबने किया है, और कुछ ने 2 बार किया, और मैंने 3 बार किया। क्योंकि कोर्स भी बदल जाता है हर 6 महीने, साल के अंदर ना, टेक्नोलॉजी बदल जाती, चीजें बदल जाती, टूल बदल जाते हैं। या तो आप एल्यूमिनाई से टच में रहो, और या तो आप फिर कोर्स को रिव्यू कर लो। अब दिस माइट बी टू अर्ली फॉर यू टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि अभी तो आपको ये जर्नी पूरी करनी है। राइट राइट। नहीं, हमने इन्हें फैसिलिटी दे रखी है कि कितनी बार भी रिव्यू कर सकते हैं, तो वो भी हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो तो मुझे भी होएगी फिर। पूरे 3 साल तक है, कोई टेंशन ही नहीं है। बल्कि अभी ग्रेट। जब आप दूसरे तीसरे साल में आओगे तब पूरा हाँ जी। बदल चुका होगा। तो ये हाँ, बताइए। एआई जिस तेजी से आ रही है, आज भी हम देख रहे थे ये कि चैट जीपीटी 4o, तो मैं सोच रहा था, सुबह ही आपको याद कर रहा था कि 4o के बारे में कभी कोई एल्यूमिनाई में कवर करो तो बता देना, हम आ जाएंगे। अच्छा सुनिए, आज सुबह सबने कोर वैल्यू बना भी ली है अपनी, और क्या क्या अच्छा। कोर वैल्यू बनाई है अनिल जी, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कुछ लोग चाहें तो चैट में टाइप कर सकते हैं, अनिल जी देख लेंगे ये लोगों हम्म। ने क्या अमेजिंग कोर वैल्यूज बनाई है, और यूजिंग एआई ओनली। पहले तो तुम बता ही रहे थे, हमने बनवा भी दी एआई से। तो एआई तो सब जगह घुसा दिया हमने। बहुत अच्छा। एक बहुत क्वेश्चन अच्छा। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज हम सिखाने वाले हैं वो है ट्रिनिटी ट्रैकर। थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दोगे इस ट्रैकर के बारे में? भाई, ट्रिनिटी ट्रैकर आने के बाद आपके लिए बिजनेस करना एकदम आसान हो जाएगा। एकदम आसान मतलब एकदम आसान हो जाएगा। और मल्टीपल शीट्स को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसके बारे में ज्यादा शेयर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बनने के बाद मेरे को अभी तक देखना पड़ा नहीं। मेरी कंपनी में ऑटोमेटिक चल रहा है और लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। अब जब प्रॉब्लम नहीं आती तो हम उसमें घुसते हैं नहीं। अब प्रॉब्लम आ नहीं रही, वो कारण ट्रिनिटी ट्रैकर। अनिल जी मैं पर मैं आपको कोर वैल्यू पे कुछ कहना चाहूंगा। कोर वैल्यू के ऊपर जो भी आपने बनाई चैट जीपीटी से, उसके बाद अगर वो अपने खुद से रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कोर वैल्यू में ऑनेस्टली बताऊं, पहले मैंने संजीव जी की चेप ली, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो गोल चक्कर में बनी हुई थी, और सब चीजें मैंने चेप ली। चेपने के बाद मुझे लगा कि ना, एक कोर वैल्यू से मैं सही समझ नहीं रहा हूँ, दूसरे को मैं रिटेंडेंट समझ रहा हूँ। तो मैंने एक सेशन किया कोर वैल्यू का, जैसे आपने बताया था, सब लोगों से किया। और फिर हमने कहा हमें ना 1 वर्ड पे जाना है कोर वैल्यू पे, सिर्फ 1 वर्ड पे, क्योंकि लोगों को एक चीज याद रहती है, उसी के अंदर सब कुछ होगा। फिर हमारी कोर वैल्यू निकल के डिपेंडेबिलिटी। अब हमारी कंपनी में किसी से पूछोगे डिपेंडेबिलिटी, सबके उस पर लगा हुआ है, तो डिपेंडेबिलिटी तभी होगी, ट्रस्ट भी आ गया, सब कुछ आएगा। तो ऐसे कुछ चीज हमारे को अंदर से क्लिक कर गई। तो चैट जीपीटी में बनाने के बाद वर्कशॉप जरूर करना, जैसे संजीव जी कह रहे हैं, और लोगों से करके फिर जो निकल के आए वो जरूर बनाना। थोड़ी सी अनसोलिसिटेड एडवाइस है, बट या मैंने स्टिल भी गॉट। बोला है, अभी इनको सिखा तो दिया है, इन्होंने बना भी लिया है, तो लेकिन बोला यही है कि टीम के साथ करो ताकि वो ओनरशिप भी आए और सही चीज निकल के आए। ग्रेट। बिल्कुल। तो आप और कुछ मुझे और पूछना कोई चाहेंगे? कोई कोई गाइडेंस आप देना चाहें कि इनको जैसे अभी इम्प्लीमेंट करना है, कोर्स अभी शुरू ही हुआ है, तो कोई गाइडेंस की इससे कि और इफेक्टिवली इसको ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? देखो सर, टीम सेपरेट बनानी पड़ेगी, जो काम करेंगे 1-2 लोग, और वो सारे कोर्सेज के जो इनके एक्सटेंशन होंगे वो करके टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो आप खुद टेक सेवी हो और कंपनी के अंदर कम एम्प्लॉई हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक सेशन के बाद कम से कम 1 से 1.5 दिन का वर्क अगर करोगे तो रियल वैल्यू मिलेगी। और अगर साथ साथ करोगे तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो ओवरवेलम हो जाओगे। वेलोसिटी इनकी भी बहुत तेज है, और इतना सारा इनको कंटेंट देना होता है कि ये मतलब कंफ्यूज ही रहते हैं कि पूरा एक सेशन में दे कैसे। और ये मल्टीपल कोर्सेज में कम बिलीव करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो इसी सेशन में आपको देंगे, तो होमवर्क करे बिना वो पूरा काम बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये हर एरिया ऑफ बिजनेस के ऊपर आपको नेट नेट आउटपुट देंगे, जिसको इम्प्लीमेंट अगर आप कर दोगे तो आपको वो फिर पूरा काम करने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल में सीधे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रेसिपी दे देंगे बस बेसिकली। तो काम तो हर दिन करना रहेगा। वाइल आई एम स्पीकिंग दिस, आपको अभी सेंस नहीं हो रही होगी, पर जब आप कैलेंडर देखोगे तो मतलब गूगल शीट मैंने चलाना यहीं पे सीखा, गूगल शीट। उससे पहले हमारी पूरी कंपनी एक्सेल पे थी। सारे लैपटॉप के हमारे वो भरे रहते थे, क्या नाम है, मैं आपको ये बताना ड्राइव भूल गया। ड्राइव। ड्राइव भरे रहते थे, हम लिंक भेजने की बजाय फाइलें भेजते थे, ठीक है ना। हमने गूगल ड्राइव के लिए अपने वीपीज और प्रेसिडेंट्स और जीएम्स के लिए सेशन किए, वो करके नहीं देते थे, एक्सेल छोड़ते थे।
गूगल फॉर्म तो भरना मतलब बनाना आती नहीं था उनको। तो गूगल के बारे में ये सब सीखना, फिर गूगल के ऑफिशियल आईडी लिए, बाकी आईडी छोड़े, फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया। ठीक है ना, हमारी आईटी की बजट्स और कॉस्ट कम हुई, हमारी मेमोरीज की बजट और कॉस्ट कम हुई। अभी जब राउटर और हब्स लगा रहे थे तो हम कुछ भी लगा देते थे, तो हमें नहीं पता था कि कैसे वो साइबर सिक्योरिटी को खराब कर देते हैं, वो हमें आपसे पता लगा। तो मतलब हमारी तो मैं कहूँगा डीएनए बदली आईटी की। साइबर सिक्योरिटी तो पता ही नहीं था, पासवर्ड हमारे लूज होते थे, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हम यूज नहीं करते थे कि भाई समय लगता है, बहुत दिमाग लगता है। और मतलब फ्री वाले जितने आपने बताया ये वाले सॉफ्टवेयर यूज करो जो ओपन सोर्स हैं, जो फ्री हैं, उससे भी बहुत सारा माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल था दुनिया जान का पहले जाता था, वो कम हुआ। बहुत सारे ऑफिशियल सॉफ्टवेयर हमने खरीद रखे थे सब्सक्रिप्शन बेस या दूसरे, जो आपके बताने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, और वो सब यूज होने शुरू हुए। आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल बहुत अच्छा है जो ये सीखेंगे। अभी तो उनको पता भी नहीं है कि इनके टूल्स कितने सारे हैं एक्चुअली, क्या प्रोग्राम इतना वास्ट है, तो इनको आइडिया मैं भी बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को भी शेयरिंग के टाइम में आइडिया नहीं आ रहा था, मेरे को भी याद करते करते आया कि मैं शुरू से हम कितना आईटी का स्पेंड करते थे और कितना आईटी का स्पेंड कम हो गया, और किस तरीके से हम गूगल पे पूरा माइग्रेट हो गए। आज अगर कोई एक्सेल वर्ड हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता, एक्सेल वर्ड ही यूज नहीं होता। राइट। लोग गूगल शीट पे ही काम करते हैं, शेयरिंग पे ही काम होता है, क्लाउड पे ही काम होता है। तो पूरी कल्चरल चेंज आया, लगा 1 साल 1.25 साल, बट पूरा चेंज आ गया। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू, आपने बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग करी। मैं अभी पूछ लेता हूँ, अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है गाइस, आप अनम्यूट करके अनिल जी से पूछ सकते हो। यस अनिल जी, मेरे पास में एक क्वेश्चन है और हेल्प चाहिए। लाइक यू नो, हम भी आप की तरह, नो आई एम 69 नाउ, सो मैं भी बहुत सारे कोर्स किए हैं और इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है हमारा, बट देन यू नो समवेयर वो इम्प्लीमेंटेशन लॉन्ग टर्म नहीं रहता, वो फिर बीच में रुक जाता है। तो उसके लिए आपने भी जैसे कहा कि रुक जाता है, फिर वापस अपने आप को कैसे उसमें अलाइन करते हो? बिकॉज हमारे भी आदमी है ना, 800 people are there, no? I know you very well. Your son also, I know. Your daughter also, I know. Yeah. So उसके लिए ये कैसे करें हम, है ना? What is to be done? तो अंकल इसके लिए स्ट्रक्चर सेट रखना पड़ता है और स्ट्रक्चर में रहना पड़ता है। जब कंपनी की कल्चर बदल जाती है, तो मेरे घर में मैं हूँ, मेरा बेटा है, और हमारे सारे वीपीज इसको फॉलो करते हैं। वीकली मीटिंग का रिदम बना हुआ है, ठीक है। हम अपना स्कोर रखते हैं, मेरी अपनी एक स्कोर शीट है जिसमें मैं लिखता हूँ मैंने डेली वाला ये भरा कि नहीं भरा, आज मैंने चाय कितनी पी ली, आज मैंने स्वीट्स तो खा ली। तो मेरे को पता लग जाता है कि मेरा एनएलएस की कंप्लायंस कितनी है, नेचुरल लाइफ साइंस की कंप्लायंस कितने % चल रही है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर टूटता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्टोर नहीं होता, क्योंकि जो साइंस माइंड में घुस गई, जब भी फिर रिजल्ट गिरने लगते हैं तो उसी साइंस की याद आती है। अब पूजा जी बताएंगी, जब मुझे बुखार होने लगता है और मैं बीमार पड़ने लगता हूँ, तो फिर मैं एनएलएस के कैंप की सारी चीजें वापस रिस्टोर करता हूँ, और 1-2% गिरती रहती हैं समय के साथ, राइट। तो स्ट्रक्चर ही सेट करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं। और उस कम्युनिटी से जुड़े रहना, एल्यूमिनाई में आते रहना। दूसरा एक बहुत जबरदस्त चीज है, जब हम महीने में 1 दिन उस कोर्स को थोड़ा टच कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, और उन लोगों के साथ रहते हैं, तो उनकी शेयरिंग सुन के फिर एक्साइट हो जाते हैं। बट ज्यादा वरी नहीं करना कि ये छूट गया तो सेल्फ बीटिंग की वो मैं कितना गंदा आदमी हूँ, मैं तो ये सब वेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे लाइफ में 80% चीजें भी रह जाती हैं, तो जो चीजें हैं वो रिजल्ट तो 100% चेंज हो जाते हैं। okay. और 20% तो रह ही जाती हैं जिसपे 100% रिजल्ट आता है। जैसे अब डीएल, ईए, एमआईएस, ईएम, वीकली मीटिंग, ये ना जा नहीं सकती लाइफ से। आपको भी रियलाइज नहीं हो रहा कि कितनी चीजें आप जिंदगी में किसी भी कोर्स की कभी नहीं भूले, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप मनन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि छूटा नहीं है, पर हमें वो फोमो हो जाता है कि वो पढ़ाई थी 80 चीजें, पर हमने तो अभी इसमें से 8 नहीं की। ओके, है कि नहीं ऐसा? राइट सर, थैंक यू। यस, यू आर राइट आल्सो। हेलो। हाँ जी, बताएं। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि ऐसे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए अभी, जब हम नरेंद्र जी से आप बात कर रहे थे,
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप इतनी सारी ट्रेनिंग्स करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ये टाइम कैसे मैनेज करते हैं आप? क्योंकि मैं काम नहीं करता। काम सारा तो डेडिकेटेड है। काम सारा तो यही हाँ, तो सीखने आते हैं हम, संजीव जैन, राहुल जैन और इन सब के साथ यही तो सीखते हैं कि हमें काम को कैसे खुद नहीं करना, और हमारा काम सिर्फ डिसीजन मेकिंग का काम है, स्ट्रैटेजी बनाने का काम है, कल्चर को चेंज करने का कंपनी में काम है, और वंस इन ए वाइल रिव्यू लेने का काम है। तो हम्म, अभी 2 ही दिन में काम हो जाता है, फ्राइडे और सैटरडे में। और एक एक ग्रुप की, एक एक कंपनी को मैं आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम वीकली देता हूँ। पूरा रियल हम्म, एस्टेट में रिव्यू होता है, पूरा सॉफ्टवेयर बिजनेस आधे घंटे में पर वीक रिव्यू होता है। तो वो स्ट्रक्चर सिस्टम बन जाते हैं जो इन्हीं लोगों ने हमें सिखाया है, हाथ पकड़ पकड़ के। हाँ, यही यही हमें आपसे मतलब संजीव जी से आपसे यही हमें सीखना है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगता है कि हम लैग कर रहे हैं, कि टाइम मैनेजमेंट में शायद इम्प्लीमेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट में हमारा गैप आ रहा है। आप जितनी बार बुलाते हैं एनएलएस कैंप में, उतनी बार वहां पे भी पहुंचता हूँ, है कि नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग वहां पर जो लैकिंग हो रही है ना हमारी, तो उसकी हम्म, वजह से हमें लग रहा है कि जो जितनी अचीव मतलब ट्रेनिंग्स तो बहुत सारी हो गई, अक्षर की भी हो हम्म, गई, राहुल जी की भी हो गई, अब यहाँ पर भी हैं और भी बहुत सारी कर ही रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें किसी ने बांध के रखा हुआ है। वो चीज हमें परेशान करती है। जी मैं मैं इस पे ऐसा कहना चाहूंगा, उसके बाद संजीव जी बोलेंगे। ये फोमो मुझे भी होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं। और मुझे जी। लगता है कि रह गया, सब लोगों ने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया और मेरी इम्प्लीमेंटेशन वीक है और हम्म, ऐसा। और क्योंकि हम भूल जाते हैं हम चले कहाँ से थे। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं चले यहाँ से थे और यहाँ पहुंच गए, तो हम्म, सेटिस्फेक्शन है, और हम जाना यहाँ चाहते हैं और अभी हम्म, यहीं पे पहुंचे हैं, इससे फोमो होता है। तो हम्म, मैं हम्म, भी ये सुबह अंशुल के साथ जब आ रहा था तो मैं यही बात कर रहा था, अंशुल यार अपनी ना इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करे। तो अंशुल बोला हम्म, पापा जाओ, सारी चीजें कभी इम्प्लीमेंट नहीं होती, जो अपन ने इम्प्लीमेंट करके जहां तक पहुंच गए उसको सेलिब्रेट करो। हम्म, चीज पे ये शेयरिंग कर देता हूँ संजीव जी, रियली में, कि अगर मैं वीक प्लान नहीं करता तो उस वीक में ना सुबह घर से निकलना ही रह जाता उस दिन का, कभी भी अगर ऐसा रह गया तो मतलब सुबह उठ के लगता है कुछ जाने की जरूरत नहीं, क्या करें। और डे प्लान भी करते हैं, फिर डे को फाइन ट्यून भी करते हैं, आने के बाद फाइन ट्यून भी करते हैं आके कि कैलेंडर में ये चढ़ाएगी, पर फाइन ट्यून करते कि कितने बजे क्या, तो उसके लिए सब चीजों का समय निकल जाता है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, कम समय में ज्यादा काम कैसे करें, उसका ही एक काम है कि कैलेंडर कैलेंडर सेट्स यू फ्री टोटली। तो जितने सारे काम माइंड में होते हैं ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, हाय कब करूंगा कब करूंगा, तो जैसे ही आप उन्हें कैलेंडर में डाल देते हैं कि मैं आज सिर्फ यही करूंगा, तो आप ना फ्री हो जाते हैं उन सब काम के फॉर्मों से कि जो आपके माइंड को बॉदर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली तो ये एब्सोल्युटली बहुत जबरदस्त साइंस है, ये शायद पूजा जी का आंसर भी है। आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? मेरे को आज सिर्फ 13 काम करने हैं, जिनमें से 10 फोन कॉल और व्हाट्सएप वाले थे, 3 बड़े काम करने हैं, और वो तीनों शेड्यूल्ड है। तो अब उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, तो एनीथिंग एल्स विल नॉट बॉदर मी। वो कब करना है वो तब करना है, तो माइंड में कुछ नहीं है, वो सब शेड्यूल में, कैलेंडर में या समडे में पड़ा हुआ है। दिस probably sets me free totally, and I am predictable to my team, and this makes my workability with the team also easier. तो शायद यही सीक्रेट होगा संजीव जी, पर मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, जैसे ही आपने कहा तो रियलाइज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो अगर आप डेली अगर अपना हफ्ता क्रिएट कर सकते हो एट वेल, अपना दिन क्रिएट कर सकते हो एट वेल, वो आदमी कुछ भी क्रिएट कर सकता है। और बाकी कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, और मेरी टीम टेक्नोलॉजी भी लगवा देगी, तो इसलिए कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। ग्रेट। तो अब जी जी, थैंक यू संजीव जी, थैंक वेलकम। किसी और का कोई सवाल तो क्विकली पूछ लीजिए, क्योंकि आनंद जी का भी टाइम बहुत कीमती है। नहीं नहीं नहीं, कीमत नहीं है। संजीव जी ने कितनी कीमत और कितना टाइम बचाया है, आई गेस आई कांट रीपे इन दिस लाइफ। संजीव जी। हेलो अनिल सर। हाँ जी सर, नमस्कार, सर कैसे मेरा हैं? एक बहुत सर अच्छा है सर, आप कैसे हैं? बस शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सुपर सर। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ जब जी। आपने टीम बनानी चालू की, टीम अलाइनमेंट चालू किया, टीम में लीडर्स डेवलप करना चालू किया, तो आपने इसको कैसे किया? कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, क्या किया? जैसे हमारी टीम सर बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी है, मतलब जान भी दे देंगे ऐसी है,
बट उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए मेरे को थोड़ा चैलेंजेस आते हैं। कैसे चैलेंजेस आते हैं फॉर एग्जांपल? सब माइंडसेट ही, जैसे एक माइंडसेट हमारा होता है, जैसे आप एमडी है तो एमडी का एक माइंडसेट होता है, वैसे ही टीम का माइंडसेट होता है कि उनको ये प्रोसेस से काम होना चाहिए, ये सिस्टम से काम होना चाहिए, ये तरीकों से काम होना चाहिए। मैं बताता हूँ उसका क्या किया है। तो आपको डिस्क टेस्ट सिखाएंगे संजीव जी। डिस्क का एक सेशन होगा, अगर आपने पहले नहीं किया तो आपको वो एक फॉर्म देंगे, बहुत सिंपल फॉर्म है। हमें ना हर टीम मेंबर, अगर वो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, वर्कर ग्रेड नहीं है, तो आपको उसकी पर्सनालिटी को समझना होगा और उससे कैसी कम्युनिकेशन करनी चाहिए वैसे करनी होगी। यू कांट डू सेम कम्युनिकेशन टू एवरीवन। What mistake we used to do is कि we expected same communication to land same way to all team members. नहीं लगता। Their journey is different, their mission is different, right? Your journey is different, your mission is different. You are a different person, and Ram is a different person, Shyam is a different person. Some want to control things, some are people oriented, some want to make compromise, some want their own way or highway. So, when you deal with such vast different personalities, you can't really do the same communication. तो 1-to-1 WhatsApp पे जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उनसे, वो टोटली डिफरेंट होती है, टोटली डिफरेंट होती है। मतलब मैं आपको बोलूंगा, आप अगर डॉग लवर हैं, आप डॉग भी पालते हैं, तो कोई डॉग को पेटिंग अच्छी लगती है, किसी को पेटिंग अच्छी नहीं लगती, राइट? किसी के पूंछ पे आप हाथ लगाओ वो काटने दौड़ेगा, किसी की पूंछ सहलाते रहो उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग का तो साथ में दिमाग का भी तड़का लगा हुआ है, अपने एक्सपीरियंस का भी तड़का लगा हुआ, तो दे आर नॉट सेम। अब जब हम कोई ग्रुप मीटिंग करते हैं तो उनको पहले उनका फायदा बताना होता है, व्हाट इज इन इट फॉर देम। और हम एज ए एंटरप्रेन्योर जनरली चालू हो जाते हैं, उनके फायदे की बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम और अपना फायदा। तो हमने तो यही सीखा है कि सबसे पहले बताओ कि उनकी लाइफ के अंदर अगर वो बॉदर्ड है, उनको टाइम नहीं मिल रहा, वो परेशान है, और हम लोग उनको ज्यादा काम दिए जाते हैं, जितना ज्यादा काम उनको दिया उसके बाद भी वो घर पे भी जाके काम करते हैं, फिर भी हम और काम दिए जाते हैं। अगर ये सब चेंज करना है, कब तक चलेगा? आप संडे को संडे की तरह यूज करना चाह रहे हो, 6 बजे ऑफिस बंद हो जानी चाहिए, आपको काम 6 बजे के बाद घर जाके नहीं करना है, क्या आप ये जानना चाहोगे? हाँ, जानना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ मैं क्यों घर जाके काम नहीं करता। अगर जानना चाहोगे तो मैं शेयर करता हूँ, फिर उनको शेड्यूलिंग बता देते हैं। राइट, ठीक है ना? तो उनका फायदा बता के शेड्यूलिंग बताओगे तो शेड्यूलिंग है। आप बोलोगे शेड्यूलिंग आपको करनी है, नहीं करोगे तो कल से 10 रुपए पेनल्टी लगेगी, मेरी कंपनी में काम नहीं कर सकते, आपका शेड्यूल कहाँ पे है, ऐसा वैसा, कंप्लायंस कितने % है। तो वो ना फिर वो उनको उनके बचपन का स्टूडेंट याद आ जाता है, वो टीचर और स्टूडेंट वाली आदत पड़ जाती है कि हैव टू में कोई कुछ नहीं करता। दे शुड लाइक टू डू समथिंग। बेसिकली अलाइनमेंट करें, फिर एलोकेट करें, डेलीगेट करें। अलाइनमेंट भी एक राइट वर्ड है, पर मैं अलाइनमेंट की जगह भी उनको उनका फायदा बताओ, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उनकी लाइफ कैसी आसान होगी, उनकी ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो कॉमन है सबके लिए। हम करेंगे वो कवर सब में निखिलेश, हम इसको बहुत करोगे। डिटेल में कवर करेंगे, बल्कि हमारा एक पूरा इसमें कल्चर का एक पूरा पार्ट है इसमें ना, तो हम उधर हम करेंगे कवर, ठीक है? तो आपसे ही चुरा के हमने यहाँ बता दिया। हाँ नहीं अनिल थैंक जी यू सर, थैंक यू। पर ये बहुत इजियर है, ये हाँ, इजियर है। वी आर बीइंग सेल्फिश, वी जस्ट पोर्ट्रे एज इफ वी वांट यू टू डू इट and this is how it will benefit the company, whereas we have to say this is what is your problem and this problem was my problem also, syntax bata raha hu, and I have solved this problem like this. If you want to solve, I am sharing this with you. गॉट इट। ग्रेट, थैंक यू अनिल जी, आपने बहुत ही अमेजिंग इनपुट्स दिए सबको। आई रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि ये क्या है कि एक सीनियर आदमी से, इतना एक्सपीरियंस वाले आदमी से जब लोग सुनते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग ही जाता है। तो गाइज लेट अस ऑल थैंक अनिल जी फॉर हिज अमेजिंग इनपुट्स टुडे। सब लोग अनम्यूट करके प्लीज थैंक यू कर सकते हैं, या चैट में भी थैंक यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे को आपका सबका प्यार थैंक यू सो मिल मच रहा है। अनिल सर। थैंक यू अनिल जी। Thank you so much. So many of you are so accomplished people.
who have already accomplished much more in life. तो I feel privileged कि मेरे को मौका मिला आपसे इंटरेक्ट करने का। और संजीव जी की तो इतनी हमारी फाउंडेशन में ईंटें और सीमेंट लगी हुई हैं कि there is nothing we can do to repay that, संजीव जी। मैं तो संजीव जी के पर्सनल फंक्शन में पहुंच के भी डांस चालू करा देता हूं उनका। अभी इनकी 50th एनिवर्सरी में सबको नचा के आया था। So, that is the love you have given to us and our entire team. Right. Thank you, Sanjeev ji. Thank you so much, Anil ji. Thank you.